Very good afternoon and assalamu alaikum everyone. This is Ehsan Chishti. I am the host and moderator for today's ETP session, Campus to Corporate, Win the Interview, Win the Job. I would do a small presentation about AMP, introducing Association of Muslim Professionals. Association of Muslim Professionals or AMP is a non-profit organization, and among many other activities, we endeavor to promote employment and knowledge in our society. These are some of our flagship projects: skill development lectures, SDLs, which we conduct in schools. We have a dedicated employment assistance cell, and there are few projects which employment assistance cell handles. Those are job fairs, employability training programs, and job drives. Employment assistance cell. We all are witnessing AMP's success as one of the most admirable national level NGOs striving for three E's: education, employment, and empowerment. Keeping in mind AMP's core objective of supporting the underprivileged, promoting education, and creating economic empowerment, AMP had launched a special project with the name of AMP Employment Assistance Cell. Today, it is one of our core projects. So, the major activities under EAC are job fairs, job drives, employability training programs in colleges, skill training company tie-ups, and skill development courses. Job fair. Job fair is one of the flagship projects of AMP, and we have successfully organized 42 plus job fairs. Every job fair has participation of minimum 50 companies and 2000 plus candidates. AMP has organized job fairs in the past in collaboration with Thane Police, Aurangabad Police, West Bengal Minority Finance Development Corporation, Andhra Pradesh State Minorities Finance Corporation, and other reputed NGOs. These government organizations and NGOs collaborate with AMP as local partners and take care of the local ground promotions in the job fair arrangements. AMP invites corporates like TCS, Asian Paints, Reliance Group, Cafe Coffee Day, McDonald's, Team Lease, Tech Mahindra, and other reputed corporates in the job fairs. These are a few pictures of our past job fairs. We had done a job fair on 3rd February in Kolkata as well, and Alhamdulillah, we were able to give employment to almost 150 candidates in that job fair in Kolkata. We have also we do job drives. Job drives are similar to job fairs but are organized on a much smaller scale compared to job fairs. In a job drive, we typically invite only up to 2 to 3 corporates who have specific openings and advertise their openings in order to attract suitable candidates. So we conduct job drives every week throughout India in collaboration with other consultancies and NGOs through the help of our chapters. These are few of our snapshots and pictures of our past job drives. ETPs, employability training programs. So, employability training program or ETP has been developed to assist job seekers find the right job at the right place at the right time and to become the right fit in a present day modern organization. Our ETP trainers are seasoned professionals who have in depth understanding of employability training and committed to investing their valuable time, resources, and knowledge in grooming the candidates. So we team up with colleges in different cities and conduct ETPs on a regular basis. These are few of our pictures of the ETPs which we do in colleges. So we also do tie-ups with the skill training companies and mobilize candidates for them. We have partnered with reputed skill training companies like Tata Trust, Whirlpool, Tech Mahindra Foundation. We have also arranged skill training melas by inviting skill training companies to hire and train unskilled candidates. So these are a few pictures of our past skill training intervention. So our achievements till now, we have done 43 plus job fairs, 9 online job fairs which we have done in the pandemic, 270 plus job fairs, 4 online job drives, 200 plus employability training programs, 15 online ETPs. So these online interventions were done during the current COVID pandemic. New initiatives of AMP. AMP has recently launched indiazakat.com,
theindiamentors.com and empowerjobs.com. IndiaZakat.com is India's first Zakat crowdfunding platform floated by the Association of Muslim Professionals with a view to bring the Zakat seekers and Zakat givers on a unified platform. Its objective is to undertake its operations purely with the intent of bringing socio-economic transformation in the lives of the people without seeking to generate any commercial surplus. TheIndiaMentors.com strives for the development of a vibrant and progressive student community in India. To achieve this, AMP tries to reach out to every needy student of India through the medium of education, career guidance, and employment assistance. TheIndiaMentors.com envisions a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. EmpowerJobs.com was launched on 6th December 2020, which is AMP Foundation Day. It is a unique job portal with comprehensive offerings introduced by AMP for job seekers, especially those hit by COVID pandemic. I would now introduce our speaker for today. His name is Mr. Hassan Latifi. He has more than 40 years of experience. He is a business financial consultant by profession. Hassan Latifi, sir, I invite you to please start the session. Assalamu alaikum, Ehsan. Thank you very much. So, uh, I am talking to the students who are looking for jobs, right? And mostly, now, just one question first. Should I continue this interview in English or in Hindi? If So I it would can be a get, mixed language. okay, fine. So let me start with English. If there is a request for Hindi, then I will switch over to Hindi. Also, I'll switch over sometimes to Hindi if that is the case. So normally, the problem arises when people start looking for jobs, especially when we have students who have come out from colleges and are looking for jobs. And the first thing they do is they go to a cyber cafe or someone and they ask them to make a resume. Cyber cafe people have a standard format of resume, which actually is not a resume, it's just a bio data. So if you think that you're creating a resume by going to a cyber cafe, it's not. It's just a bio data which you are creating. So please, whenever you're going for whenever you're creating a resume, put in some effort. There are a lot of resumes available online which you can look at and kind of take some guidance from it, or look at you can go to or you can refer to people uh, who can guide you in creating a better resume than what you get at the cyber cafe. So as you can see, the first thing is a resume. You have to understand that when you are posting a resume, you are not the only person who is posting the resume. अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि उस जॉब के लिए कम से कम, मतलब हमारे आजकल मैंने जो भी लोगों से सुना है वो ऐसा है कि अगर एक जॉब के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो कम से कम एक जॉब के लिए 50 to 100 रेज्यूमेस आ रहे हैं. तो आप ये सोचिए कि अगर आपका रेज्यूमे अप टू द मार्क नहीं होगा, if it is not really a good resume, interesting resume, nobody is going to take the effort to read it also. यानी ये कॉमन चीज है कि सर मैं बहुत जगह पे अप्लाई किया, बहुत जगह पे रिज्यूमे भेजा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया. रिस्पांस कैसे आएगा अगर आप इस तरीके के रेज्यूमे ही बना रहे हो जो कि जिसमें कोई ये नहीं है, और ना ही कवर लेटर बना रहे हो, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स है, उसमें फॉर्मेटिंग नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है,
तो इस तरीके से अगर आप रेज्यूमे बनाओगे तो ऑब्वियसली वो चीज को कोई देखेगा भी नहीं. So please, थोड़ा जॉब पे जाने से पहले put in an effort to see your resume or get it, verified, या किसी को मतलब उसे रिव्यू करने का, somebody who is who is experienced in resumes. Yeah, there is many online resumes, many resumes and cover letters you can look at online. You are living in an age of internet. You are living in an age of computers. You are living in an age of Google. So I don't understand why you have a difficulty in creating a resume on your own or creating a cover letter, which is very easy today to find on the internet. So my first advice to all you guys out there is, first, get your resume right. Look at the resume, create a resume which is specific to your job. Don't create resumes per mass, यानी एक resume बना दिया और फिर वही चीज लाइफ लॉन्ग यूज कर रहे हैं. I get a lot of people, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनका 10 साल 20 साल यानी एक्सपीरियंस होता है, बट उन्होंने जो 10 साल पहले रेज्यूमे बनाया था उसी को खाली फर्दर डाउन किया करते हैं. That's not the right way. Create a resume specific to the job, specific to your need, specific to the need of the company. That is what is important. कि आपके रेज्यूमे में वो चीज होना चाहिए जो जॉब के रेलेवेंट हो. अभी आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? यही कहोगे कि सर हम फ्रेशर है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं. It's not just experience in job which you can relate to as a इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें की होगी, जैसे आपने कोई चीज ऑर्गेनाइज किया होगा, आपके स्पोर्ट्स में आप टीम या कैप्टन रहे हो, या कोई अच्छे इसमें किए हो, स्कोर्स किए हो, कोई भी ऐसा रिलेवेंट चीज जो होगा जिसमें आपकी एक कैपेबिलिटी दिखाई देती है, वो चीज को मेंशन करना अच्छा रहता है रेज्यूमे में. सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर going in for your job. So now one second. Why? I am not able to. Okay, sorry. Now there are different types of interviews. Nowadays, there's normally there used to be a one-to-one interview, but now it's mostly online interviews and phone interviews, video interviews and Skype interviews. There is one thing very important what people don't understand. If you are giving an online interview or any type of interview, any kind of distraction, any kind of noise is an irritant to the interviewer. I'll explain that. मिसाल के तौर पे बहुत सारे टाइम पे ऐसा हुआ है कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो कैंडिडेट्स जो है अपने मोबाइल को साइलेंट पे नहीं रखते, या उनका वो व्हाट्सएप मैसेज टिंग टोंग करता रहता है. तो प्लीज आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा करने वाले लोगों को जो इंटरव्यूअर होता है वो उसको मतलब उसकी इंटरव्यू वहीं पे उसने फेल किया होता है. He has already rejected the candidate by his this behavior. याद रखना है आपको ये चीज को पहले जहन में रखना है कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपने किसी भी किस्म का किसी भी टाइप का इंटरव्यू को जो डिस्ट्रैक्ट करे उस चीज को नहीं अपने साथ रखना है. मोबाइल्स को खास करके ऑफ कीजिए, एयरप्लेन मोड कीजिए या ऑफ कीजिए, किसी भी तरीके से उसको ऑन मत रखिए. आजकल जो इंटरव्यूज ऑनलाइन होती है उसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है
लोग जो है इंटरव्यू रखते हैं और पीछे उनके घर वाले घूम रहे फिर रहे या बच्चे खेल रहे, वो सब कैमरा में दिखाई दे रहा है। तो इंटरव्यू को जो है वो जो आप बोल रहे हो उससे ज्यादा उसको इंटरेस्ट हो जाती है कि वो पीछे क्या हो रहा है। अगर वो बच्चा कोई खेल रहा है, कोई मस्ती कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसका जहन या उसका डिस्ट्रैक्शन उस तरफ चला जाता है। तो हमेशा यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमेशा जो भी है आपके बैक साइड पे कोशिश करिए कि आप वॉल को फेस करिए, मतलब आप वॉल की तरफ रहे, बैक आपका वॉल को रहे या कोई प्लेन बैकग्राउंड को, ताकि पीछे जो है आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। और घर वालों को भी बोल के, कभी टीवी ऑन है, कभी बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो ये सब चीजों को मतलब दीज आर डिस्टर्बेंसेस, ये सब चीजें जिससे लोगों को परेशानी होती है और इंटरव्यूअर जो है वैसे ही आपको फिर रिजेक्ट करता है। अक्सर लोग ये नहीं समझते कि वो सोचते हैं कि हम इंटरव्यू दिए, हमने ये सब किया, हमने बहुत अच्छा बात किया, लेकिन हमारी इंटरव्यू में हम पास नहीं हुए। लेकिन ये सब चीजों को नोटिस नहीं करते कि ये सब चीजें अगर हमने किया है, मतलब हम वेल ग्रूम्ड नहीं बैठे हैं, हमने बराबर से मतलब अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया है, हमने अपने आप को कैसा मतलब सामने वाले से बात करने के टाइम पे किस तरह से हम बिहेव किए है, ये जरूरी है, विच आई विल कवर इन माई टॉपिक फर्दर। सो अभी प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है, ये अगेन आजकल मैं अक्सर देखता हूं कि लोग जो है इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो कौन सी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कम से कम कुछ तो अपना कंपनी के बारे में, जो जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिस कंपनी के लिए आप बात करने जा रहे हो, उसका थोड़ा रिसर्च करो, डू सम रिसर्च, do find out what is their products, what is their latest news about the company, every such thing ये जानना जरूरी है। हेलो हेलो so you have to understand that before you go to a company you should know something about the company, because in the interview just you are not going to be asked questions, you also should ask questions। सिर्फ तुमने जवाब नहीं देना है, तुमने सवाल भी पूछना है। अगर तुम वाकई में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू का मतलब होता है बातचीत करना, एक दूसरे के बारे में जानकारी लेना। तो जिस तरीके से कंपनी आपके बारे में जानकारी लेती है, उस तरह से आपको भी कंपनी के बारे में जानकारी लेना है। जिस तरह से आप रेज्यूमे देके अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, उसी तरह से कंपनी का रिसर्च करके आपको कंपनी का डिटेल्स जानना चाहिए। You have to get to know about the company before you even go to the company. You should try to understand who you are meeting if possible, who is the HR manager in that company, and so on. And these things are very easily available today on LinkedIn. If you go to LinkedIn, you can find out who is the HR for Godrej or any big company, any company for that matter. Then also try to ask some advice from people who are senior or who you know are into that kind of field or that kind of industry. Supposing you're going for an IT job, then try to find out from some IT guys what kind of a company this is. If you're going for some particular company, X, Y, and Z, try to find out something about the company by asking around or asking people. Obviously, Google is the most convenient form of finding out, but there are other ways and other sources also. One of the most irritation or most reason why people fail in interviews is not being on time. Many people do not understand the value of time. They don't even understand that the interview that has been prepared, यानी इंटरव्यूअर ऐसा आप लोग को मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इंटरव्यूअर के पास कोई काम नहीं, वो सिर्फ वहीं पे बैठा हुआ है और आप कोई भी टाइम पे जाओगे तो वो आपके लिए एवर रेडी रहेंगे। For your information, those people who have called you for interviews are very busy. They have tight schedules and they keep a slot for the interview to talk to the candidates.
And when you miss the time and when you take away that time, then you have already gone into a negative format with them, unless it is a life and death situation, which is hardly the case. Mostly it is traffic late thi, train nahi mili, and all that rubbish. Agar traffic ka, if you know, today you can easily find out what is the situation of traffic by checking on Google Map. You can always find out, you can always start half an hour earlier. So please do not be late, be on time. If you are late, you have already killed your interview. Another important part about it is dressing for the occasion. Either people dress, they, when I see college students, they think that they have come for a college meeting or something. Sorry, friend, this is a corporate world. It's no longer jeans and, t-shirts system. Each, when you are in school, you have a uniform system. When you are in college, you have jeans and t-shirt culture. In corporate, there is a dress code. You have to follow the office formal dress code system. You cannot go just like, you are going for a picnic or something. So please dress decently. Most people do not even understand. They wear slippers, chappal पहन के आ जाते हैं, t-shirt पहनते हैं, और कुछ लोग मैंने मतलब ऑड लोगों को देखा है जिसको मतलब ड्रेस सेंस ही नहीं होता है कि वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. और बाज वक्त तो ऐसे भी लोग हैं जो अपने पूरे शर्ट तो पहनते हैं लेकिन उनको इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि 2-4 बटन पूरे खुले रखते हैं. तो भाई आप वहां पे फैशन शो के लिए नहीं जा रहे हो, आप वहां पे एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. तो प्लीज पहले तो टाइम पर जाइए, वहां पे वॉशरूम में जाइए, फ्रेशन अप होइए, प्रेजेंटेबल होइए और फिर आगे बढ़िए इंटरव्यू के लिए. सो जैसा मैंने कहा कि अगर आपने कंपनी के बारे में जाना है या थोड़ा आपको कंपनी के बारे में मालूमात हुई है तो अपने पहले से ही क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए कि भाई ये पोजीशन मुझे क्यों मिल रही है, इसमें मुझे मतलब क्या स्कोप है, मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ, where do I see myself in future. तो जब तुम इस तरीके से क्वेश्चन हेलो हेलो Yes, sir. We had lost you for about 2 minutes. So please, we can hear you now. You can please restart. Is it okay now to start? Yes, yes, yes. Okay, fine. So, as I again said, I emphasize minimize any distraction. कोई भी distraction हो जिससे कि इंटरव्यू को परेशानी हो, उस चीज को बंद रखो, मोबाइल्स स्पेशली. एंड फर्स्ट इंप्रेशन जो क्रिएट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरीके से स्माइल करना, फर्म हैंडशेक देना, या अगर लेडीज भी है तो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना, ये एक बहुत जरूरी चीज है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. जिस तरीके से यू कैन सी कि ड्रेस किस तरह से करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे अक्सर लोगों के पास या अक्सर लोग सूट नहीं पहनते, बट फिर भी आपके पास प्रॉपर ड्रेस को, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, मतलब ये नहीं फ्लावर वाला शर्ट हो और डिजाइन वाली पैंटे हो या वैस तरह से नहीं हो. तो एक सोबर टाइप, एक प्रेजेंटेबल वे ऑफ ये होना चाहिए. तो जिस तरीके से लेडीज के लिए भी शलवार कमीज या साड़ी हो, जो साड़ी पहनते हैं,
नो विजिबल बॉडी पियर्सिंग और टैटूज, जैसे वो कान पे बाली लगाए हैं या टैटूज बनाए हैं। तो शूज होना चाहिए, और वो भी बंद जूते होते हैं जो पॉलिश करके, साफ सुथरे जूते। और ज्वेलरी जो है, लेडी शुड नॉट फ्लाउंट ज्वेलरी, एंड प्रॉपर कंजर्वेटिव हेयर स्टाइल, मतलब जिसमें कि वो स्पाइक ना हो, और आजकल जैसे बच्चे करते हैं वो इस तरह से वो पूरा बाल उड़ा के खाली बीच में बाल रखते हैं। तो बी डिसेंट एंड प्रेजेंटेबल। Makeup also for girls, they should keep it minimum, not very heavy makeup. तो बेसिकली जो है एक नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस कोड फॉलो किया जाए, ताकि जो इंटरव्यू में people should find it quite presentable. There are some people who are raising hands. I hope Aslam, Ehsan, you can ask them to wait for the question answer. Yes, sir. Yes, sir. I'll tell them. Okay. So now there is a way of किस तरह से आप हैंड शेक करते हो, किस तरह से आप प्रेजेंटेबल करते हो, अपने आप को किस तरह से आप प्रेजेंट करते हो। तो स्माइल करना है, आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी को मिलते हो, शेक हैंड करते हो, तो इधर उधर देखने से अच्छा सामने वाले को देखो, आई टू आई देखो, उस तरीके से उसको जो है फील करे कि आप में कॉन्फिडेंस है। आई कांटेक्ट से एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है सामने वाले में कि कॉन्फिडेंस है, नर्वस नहीं। एक्सटेंड योर हैंड इस तरह, एंड फर्म हैंड शेक रहना चाहिए। और ये नहीं कि इस तरह से खाली एक मतलब हल्का सा हाथ पकड़ लिया और छोड़ दिया। अगर आपको हैंड शेक नहीं करना है तो इंडियन स्टाइल नमस्ते कर लीजिएगा, बट इफ वॉट एवर यू आर डूइंग, डू इट इन अ प्रॉपर वे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके हाथ स्वेटी होते हैं, गीले होते हैं, आपको मालूम है आपके हाथ में पसीना होता है, तो मैं प्लीज उससे पहले आप हैंड शेक करने से पहले ध्यान रखना, इंटरव्यू के अंदर जाने से पहले आप अपने हाथ में टिश्यू या रुमाल रख के अपना हाथ सूखा करके फिर हैंड शेक करना। क्योंकि मोस्ट इरिटेटिंग और मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग होता है कि कोई गीले हाथ या मतलब पसीने वाले हाथ से कोई अपने हाथ को कोई को हाथ मिला। So it's the most disgusting thing. So please don't do it. If you do it, it's one of, yani it's a no-no situation. Body language जो है, now body language क्या होता है, किस तरीके से आप सामने वाले से बात कर रहे हो, आई कांटेक्ट रख रहे नहीं, मतलब जब आप बात कर रहे हो तो आप नीचे देख रहे हो या इधर उधर देख रहे हो या फिजिट कर रहे हो, मतलब अपनी उंगलियों से वो कर रहे हो या क्या, मतलब इस तरह से अगर कोई चीज कर रहे हो तो वो एक बहुत ही गलत अंदाज देता है आपका। ये मतलब इससे ये काफी जाहिर होता है कि तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो और बहुत ज्यादा मतलब झूठ बोल रहे हो। तो और वीक हैंडशेक, ये सब चीजें जो है बहुत बैड इंप्रेशन देती है आपके बारे में। तो ट्राई टू, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है इसको एक काफी कॉन्फिडेंस में बात करिए। देखिए, आपको एक बात समझना चाहिए कि आपका इंटरव्यू क्या है। आपको ये समझना चाहिए कि आपका इंटरव्यू क्या है। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप कोई काम नहीं करते हो, आप कोई मतलब आपने चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, जो भी है आपका, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर दैट कंपनी एट दैट टाइम फॉर द इंटरव्यू। मतलब वो इंटरव्यू के टाइम पे आप कोई काम नहीं करने वाले। मैक्सिमम आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ मतलब उस तरीके से टेक्निकल क्या बोलते हैं, एक टेस्ट ले सकते हैं। वो मतलब उससे जो है आपकी जो नॉलेज है या थ्योरिकल नॉलेज है वो सामने आती है। इसके अलावा आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है या आप जो कर सकते हो, ये सिर्फ आपको, उसके लिए आपको 3 महीने का बाकायदा प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है। तो आपका इंटरव्यू क्या है, व्हाट इज द इंटरव्यू? इंटरव्यू आपकी जो कॉन्फिडेंस है, जो आप में कॉन्फिडेंस है, जो आपका मतलब एटीट्यूड है, जो आपका प्रेजेंटेबल वे है, वो चीज को देखा जाता है।
मतलब ये देखा जाता है कि आप में एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आप जल्दी गुस्सा होते हो, आप नर्वस होते हो हर टाइम पे, आप सीनियर्स के साथ किस तरह से पेश आ सकते हो, आपकी बॉडी कैसी, मतलब आपकी, आप ज्यादा झूठ बोलते हो या आप मतलब बात करने के टाइम पे कॉन्फिडेंस और सही तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से आप अपने आप को ये प्रेजेंट करते हो, ये आपकी इंटरव्यू की बेसिक रे रहती है रिक्वायरमेंट. Company wants to see how or what kind of a person they are going to hire. Is he a confident person? Is he having some kind of credibility, or does he lie for every such thing? There are some candidates who will lie for small things, or they will make stories about uh, I don't have a job, and they kind of beg for a job. Don't do that. There are some candidates who literally beg for a job, and that is a very bad sign for you. Let me tell you something. The interviewer will not give you a job if you are not capable. He may feel sad for you, he may feel bad for you personally, but as far as the job is concerned, he will never give you if you are not capable for the job, or if you are not, good enough as per the requirement of the company. So try to understand what is the requirement of the company and present yourself in a presentable way. Don't beg for any job, because it will never help. It will never give you a job. So there are many do's and many don'ts in an interview. As you can read, carry one item, take a bag or something, briefcase, and organize everything properly in the bag, your papers or your resume, every such thing, put it properly so that you are not having a disoriented look. Shoes count, as I said, wear proper shoes, for girls also and for boys. Slippers, wearing a slipper is not even good even for girls or for boys. Boys totally no. For girls also, in India, it does it does go. I would say people do not mind if girls wear slippers, but boys totally no. So as far as an interview is concerned, as if you're going for an interview, don't wear slippers. So sit slightly angled. The reason for that is when you are sitting in angle position, you're you're giving him your attention. It's like you're not looking away from him, and you're looking at him, and you're giving that attention. So it makes him feel that you're attentive. Most important, as I said, to be confident. And if you don't know something, don't hesitate. But at the same time, never say, I don't know. Say, sir, I can always learn it in the 3 months of probation. यानी अगर आपको फर्ज करो कोई भी चीज आपको मतलब लगता है कि आपको उसका नॉलेज है, बट आपको उसका पूरी तरह से आपको एक्सपीरियंस या हैंड्स ऑन ये नहीं है, तो आपने कभी भी ये नहीं कहना है कि सर मुझे नहीं पता या आई डोंट नो. आप तो सिर्फ इतना कह सकते हो कि सर, in the 3 months probation, I will surely learn it and I will update myself with it. आपको वैसा भी कंपनी 3 months probation पे लेती है, तो वो 3 months जो probation होता है उसमें आपको लर्निंग टाइम होता है, तो आप वेरी क्लियरली बोल सकते हो कि मैं ये 3 महीने में जो है वही चीज जो आप नहीं जानते हो, आई विल लर्न इट एंड आई विल गेट माई सेल्फ अपडेटेड. लेकिन ये कभी नहीं करना कि सर आई डोंट नो दिस, आई डोंट नो दैट. इस तरीके से मत कहना, क्योंकि 3 months जो है वो काफी होता है कोई भी चीज जानने के लिए या सीखने के लिए. यहां तक इंग्लिश भी, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो इंग्लिश में वीक होते हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं बट बोलने में उनकी वीकनेस होती है, तो वो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं 3 months पीरियड में, अगर वो सीरियसली उस पर वर्क करेंगे. तो जैसा प्रेस योर लिप्स,
कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड, बैठना इस तरीके से, ये सब चीजें जो है वेरी बहुत ही घटिया एटीट्यूड होती है. डोंट डू दैट. एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ. इसमें जो है अक्सर मैंने देखा है कि वो जो अपना रेज्यूमी है वो चीज को रिपीट कर देते हैं ये क्वेश्चन. तो इसके ऊपर आप मेरी एडवाइस ये रहेगी कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स और वीडियोस है यूट्यूब पे एंड गूगल पे. प्लीज उनको रेफर कीजिए, देखिए कैसे लोग अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरीके से, फ्रेशर्स भी कैसे जवाब देते हैं, कैसे अपने आप को उन लोग प्रेजेंट करते ये क्वेश्चन पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. यही आपका क्वेश्चन होता है जो डिसाइड करता है आपको वो चूज करना है उसने या नहीं करना है. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कैरियर मेकिंग क्वेश्चन होता है आपके लिए. तो आपको इस चीज पे, जैसा मैंने पहले ही स्टार्ट में कहा कि आज आप इंटरनेट के जमाने में रहते हो, आपके पास सारी कन्वीनियंस है, इंटरनेट है, गूगल है, सब चीज है. रेफर कीजिए, देखिए इंटरव्यू क्वेश्चंस, देखिए यूट्यूब पे इंटरव्यू के बारे में, हाउ टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, ये सब चीजों को आप थोड़ा रिसर्च कीजिए तो आपको इसके बारे में पूरी एक जानकारी होगी. और जब आप उस चीज को अपने आप के साथ रिलेट करोगे, कॉपी मत कीजिए. डू नॉट कॉपी एनीथिंग, डू नॉट ट्राई टू कॉपी एनीथिंग, ट्राई टू रिलेट इट विद समथिंग दैट यू हैव विद इन यू. आपके अंदर जो है वो चीज को रिलेट कीजिए, तब उसका एक ये बनता है. क्योंकि किसी ने कोई एक आंसर दिया और आपको वो आंसर अच्छा लगा, उसको कॉपी मत करो. इट शुड रिलेट विथ यू. आपकी स्टोरी के साथ वो रिलेट होना चाहिए, आपकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके साथ रिलेट होना चाहिए, तब जाके वो इंपॉर्टेंट बनता है और तब जाके वो उसमें सेंस आता है. ये अगेन इसमें भी इंटरव्यू क्वेश्चंस है. इसमें अगेन ऐसा होता है कि हर एक का आंसर अलग होना चाहिए, या हर एक का अक्सर ऐसा होता है कि मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं सर इसका क्या जवाब देना चाहिए. अभी व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, अभी तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हो उसका अगर तुमने रिसर्च किया है तो तुम इसके जवाब दे सकते हो. व्हाई डू यू वांट दिस जॉब. अगेन अभी यहाँ पे मैंने जैसा कहा कि यहाँ पे वो रीजन बोलना कि आई डोंट हैव अ जॉब, माय दिस ऐसा, माय फैमिली पोजीशन इज वेरी बैड, ये सब बोलने से अच्छा बेटर होगा कि तुम अपनी कैपेबिलिटी बताओ कि बिकॉज आई एम फिट फॉर दिस जॉब, आई हैव दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, आई हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज. उस तरीके से अपने आप को बताओ, केपेबल बताओ अपने आप को जॉब के लिए. नहीं कि आप भीख मांगने नहीं जा रहे हो, आप जॉब लेने जा रहे हो. तो आपको ये समझना चाहिए कि आपने ये नहीं करना है कि नहीं मुझे मेरे घर में कोई खाना देने के लिए नहीं है इसलिए मुझे जॉब चाहिए. नहीं, आप केपेबल हो, आप में कोई केपेबिलिटी है, वो चीज को बताइए, तब आप जॉब मांगिए. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. और ये सारे क्वेश्चंस जो है इसके बहुत सारे आंसर आपको गूगल पे और यूट्यूब पे मिल सकते हैं, या आप किसी के साथ डिस्कस करिए. कोई मेंटोर हो, कोई जो आपको गाइड कर सके, उसके साथ डिस्कस कीजिए कि सर इस तरीके से किस तरह से, ताकि वो आपको गाइड करे. क्योंकि आपकी गोल्स क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हर इंसान की ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अलग होते हैं. तो एक जैसा जॉब, एक जैसा आंसर नहीं होता. अगर आप सोचोगे कि मैं एक आंसर अगर दे दूं तो वो आंसर सबके लिए अप्लाई होगा, ऐसा नहीं हो सकता. अगर मैं जैसा अभी व्हाई डू यू नीड वांट दिस जॉब, अगर मैं एक आंसर दे दूं तो वो सबके लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हर एक की एक कैपेबिलिटी अलग होती है, हर एक की एक स्टैंडिंग अलग होती है, हर एक की एक पोटेंशियल अलग होती है. तो उस तरीके से उसको जॉब देना पड़ेगा. तो इसीलिए कभी कोई मेंटोर्स लीजिए जो आपको गाइड कर सके, जो आपको मतलब सही एडवाइस दे सके, तो उससे आपको फायदा होगा. तो
Now, here we talk about prepare your stars. What is stars? सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है, इसको स्टार्स क्या होता है. तो जब भी तुम whenever you are going for an interview, whenever you are thinking of going for an interview, first look into yourself. What is your star? What was the situation your previous employer faced? Or you may not have worked, but maybe you have done something for your home, for your family, for something where जहाँ मिसाल के तौर पे, for example, I'll give you a very good example nowadays. आपके फादर जो है इंटरनेट बैंकिंग नहीं जानते, तो आपने उनको गाइड किया किस तरह से इंटरनेट बैंकिंग किया जाता है, किस तरह से उसकी सेफ्टीज देखी जाती है, किस तरह से मतलब अपने आप को सेफ गार्ड किया जाता है. ऐसे कोई भी चीज आपने जो कोई भी टास्क किया हो जिससे कि आपके घर वालों को या किसी को भी आपने फायदा पहुंचाया है, जिसकी वजह से उनके जो सिचुएशन थी उसको आपने एक अच्छे रिजल्ट में टर्न किया, तो इसको स्टार कहते हैं. मतलब एक सिचुएशन होना, उसके ऊपर आपने किस तरीके से वो सिचुएशन के ऊपर काम किया या उनको गाइड किया, उसका क्या मतलब उस किस तरह से आपने रिलेट करके और उसका क्या रिजल्ट आया. इसको हम स्टार्स कहते हैं कि एक सिचुएशन को आपने किस तरह से सॉल्व करके उसके ऊपर एक्शन करके उसका एक अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश की. इसमें हर एक के साथ अलग अलग ये होता है. जैसे कि फर्ज करो आपने कॉलेज के टाइम पे या किधर भी स्कूल के टाइम पे आपने कोई पिकनिक को ऑर्गेनाइज किया हो, जिसमें आपने मतलब आपकी इन्फ्लुएंस से, आपके कॉन्टैक्ट से, आपके कनेक्शन से आपने काफी क्या बोलते रेट्स कम किए हो, डिस्काउंट्स दिलाए हो, कोई भी ऐसी चीज मतलब आपने फायदा पहुंचा है, तो वो जो है these show that you have a potential of doing something on your own. इसको स्टार कहते हैं. नाउ जैसा हमने कहा कि इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, what do you know about the position you applied for, what are your strengths and weaknesses, why should we hire you. अब ये जो why should we hire you है, इसमें जो है इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैंने जैसा पहले कहा कि अगर आप अपने आप को मिस्कीन या मतलब बहुत जरूरतमंद बताते हो, अक्सर लोग जो है मैंने देखा है कि इतना फोर्स करते हैं लिटरली इंटरव्यू को हमारे को कि सर हमारे को प्लीज किसी भी तरह से जॉब मिल जाना चाहिए, हम बहुत परेशान हैं. अरे भाई, इट इज रिडिकुलस. फ्रैंकली आई विल टेल यू, ऐसे लोगों को तो मैं कभी जॉब नहीं दूंगा और कभी नहीं देता हूं, बिकॉज दे आर इरिटेटिंग. यानी अगर आप केपेबल हो तो आपको जॉब मिलेगा, बट ये बिहेवियर जो होता है इससे जो है इंटरव्यूअर जो है आपकी जो भी अच्छाई भी है उसको भी रद्द कर देता है, बोलता है यार ये तो परेशान करने वाला आदमी. तो प्लीज डोंट एवर अपने आप को कभी इस तरह से लोअर मत कीजिए. अगर इंटरव्यू के लिए कभी भी जा रहे हो तो डू नॉट बिहेव इन दिस मैनर कि प्लीज सर मुझे जॉब चाहिए, प्लीज सर मुझे मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है. Don't do that. Don't ever do that behavior. It is one of the worst behaviors that an interviewer doesn't accept. Then, questions you should ask. अब यहाँ पे जैसा मैंने कहा आपको कि इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ साथ में आपको भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आप तब पूछ सकते हो जब आप उसके लिए रेडी हो. इसके लिए आप जो है मतलब कॉन्फिडेंस में और बात करते हो. सो व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट वर्किंग फॉर दिस कंपनी, टेल मी अबाउट द कल्चर. अभी जरूरी नहीं है, अभी अगर तुम एक न्यू हो, फ्रेशर भी हो, तो भी तुम वो कंपनी का कल्चर नहीं जानते हो, तो तुम्हारे को उस कंपनी के कल्चर का या उस कंपनी के वर्किंग का सिस्टम जानना
एक अच्छी चीज है। उसमें ये दिखाई देता है कि तुम्हारे में कितनी कॉन्फिडेंस है और कितना तुम, और सामने वाला इंटरव्यूअर भी तुम्हारे को उसके रिप्लाई से ये अंदाजा होता है कि वो तुम्हारे को कितना सीरियसली बात कर रहा है, या तुम्हारे साथ कितना सीरियसली वो तुम्हारे को कितना सीरियसली ले रहा है. This will give you a kind of a evaluation in that very moment about whether if the interviewer has liked you or has rejected you. How will I be evaluated during my first 3 months? And if you are being selected, how will you be evaluated? What is going to be the system of evaluation? Why is this position vacant? Now, obviously, if there is interns and all these, you don't ask this question. These again, ये सारी क्वेश्चन जो है रिलेवेंट होना चाहिए टू द जॉब. अभी आप एक वहां पे अगर इंटर्न्स के जॉब के लिए जा रहे हो तो आप ये नहीं पूछ सकते हो कि वहां पे ये जॉब ये वैकेंसी क्यों है. बिकॉज इंटर्न्स जो होते हैं वो तो लिए जाते हैं क्योंकि एज इंटर्नशिप के हिसाब से कि उनको जो है ट्रेन किया जाएगा और फिर बाद में इफ दे आर केपेबल देन दे विल बी टेकन ऑन जॉब्स. और it's not even necessary. Many colleges need you to do internship to give you the certificate. So you have, it's a part of your learning this. So internship में ये question नहीं पूछ सकते आप. So it depends. इसीलिए मैंने कहा ना कि हर एक चीज को relevant होना चाहिए. मतलब जो जॉब के लिए जा रहे हो उस चीज के साथ relevant होना तो उसको कुछ फायदा होता है. Why do you think job applicants choose to work here rather than your competitors? अगेन ये सब क्वेश्चन जो है अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हो या आपके पास कुछ 2 4 5 साल का एक्सपीरियंस तो आप इस चीज को पूछ सकते हो, फ्रेशर्स के हिसाब से नहीं. आंसरिंग टिप्स, मेंटेन आई कांटेक्ट, अवॉइड सेइंग फिल्टर्स लाइक बेसिकली एक्चुअली. जो वो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ हाँ ठीक है, इस तरह से मत जवाब दीजिए. किसी से भी बात करना है तो प्रॉपर जवाब दीजिए, प्रॉपर आंसर दीजिए. ओके, यस, या आजकल खास करके कॉलेज स्टूडेंट्स जो है, डू यू हैव दिस, या आई हैव, या मतलब इतना स्टूपिड वे है बिहेव वो आंसरिंग का कि उसको जो है मैं नहीं समझता कि उन्होंने इंग्लिश सीखा है या उनको इंग्लिश का कोई ये नहीं है. या जो है एक स्लैग है, वो एक वर्ड नहीं है, उसको यूज नहीं करना कभी भी इंटरव्यूज में. अगर आपको हाँ बोलना है तो यस बोलो, नो बोलो, ये या ओके, इस तरह से जवाब मत दीजिए. ओके, बी कर्टियस, स्माइल. स्माइल मतलब हर टाइम पे मत करके हंसते मत रहिए, मतलब लेकिन जब आप जवाब दे रहे हो तो लोगों से अच्छे से स्माइल करके, जब इंटरव्यू सामने है, 2 हो 1 हो जो भी है, उनसे बात करने के टाइम पे गुस्सा होके या एंग्री या एटीट्यूड बता के नहीं बात करें. स्माइल, या ये एक कॉमन वे में बात स्माइल करें. ओके, अभी मैंने लास्ट का लिखा है, टेल स्टोरीज, ऑलवेज सेट एग्जांपल्स फ्रॉम योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस. ये अगर यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, मुझे लगता है मैं जिनसे बात कर रहा हूँ ये सारे फ्रेशर्स रहेंगे, इंटर्न्स हो गए, न्यू ज्वाइनीज हो गए, इनके लिए ये अप्लाई होता है कि जिस तरह से मैंने कहा कि अगर आपको स्टोरी कहना है तो जैसे आपने कोई अच्छा कोई ये किया हो, कोई ऑर्गेनाइज किया हो पार्टी, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, irrespective, it doesn't matter. But if you are good at organizing something, if you are good at doing something, say it in that interview. It matters. It may not be relevant to the job, but it shows that you have some capability of doing something that is important. Okay, let's do ओके. क्या क्या चीज नहीं बोलना है, what you should never say in an interview. There are certain things which people do in the interview which is absolutely wrong. Never say these things in an interview.
your primary reason for leaving your job or looking for a is because of your boss, your manager. He is, you know, वो racist है, वो religious fanatic है, वो मतलब कोई भी ऐसी बुरी बात अपने बॉस या अपने मैनेजर या अपने कलीग के बारे में कभी नहीं करना प्रेजेंट पास्ट किसी के इसमें कि ये जो है दिस इज अ नो टोटल you have never to say bad things about anyone about in your interview. This is very important. This job is one of the several for which you are applying and not your first choice going into the interview. This is never to be done. यानी लोग एक्चुअली क्या होता है कि बहुत जगह इंटरव्यूज देते, बहुत जगह इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करते, बहुत जगह रेज्यूमीज भेजते और उनको एक ही दिन पे 2-3 जगह पे इंटरव्यूज होता है, शेड्यूल होता है, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक शाम में. तो अब वो सुबह वाले इंटरव्यू को बोल देंगे ओके आई हैव जस्ट अप्लाई फॉर दिस, आई हैव अनदर दिस विद अ बिगर कंपनी विद गोदरेज, so if I get here it's okay, otherwise I am going to go to Godrej in the afternoon. So you never do this. ये कभी इस तरह से नहीं करना, because you are not sure that you're going to get a job in Godrej and your overconfidence will never get you a job. ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना लोगों का, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात, ओवर कॉन्फिडेंस होना इज नेवर हेल्पफुल, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, कुछ भी चीज ओवर जब करते हो तो उसमें हमेशा जो है कहीं न तो कहीं फ्लॉ निकालते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को ज्यादा शाना समझते हो या ज्यादा स्मार्ट समझते हो तो सामने वाला आपको गिराने की कोशिश करता है. तो इसीलिए हमेशा स्मार्ट रहिए, बी स्मार्ट, बी कॉन्फिडेंट, but don't try to be over smart and over confident. Just be, you know, smart. You have an inside contact or relative, ये सब चीजें कभी नहीं कहना. अगर आपका कोई रिलेटिव उधर काम भी कर रहा है तो कभी उस चीज को मेंशन करना नहीं, या आपकी अगर अंकल है या वो है इस तरह से कभी नहीं कहना, क्योंकि कॉर्पोरेट रूल में रिलेटिव्स को, ब्लड रिलेटिव्स को या नियर रिलेटिव्स को साथ में जॉब्स देना मना है या अलाउ नहीं, उसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स रहती है. इस वजह से उसको कभी भी, अगर फर्ज करो कोई बाप है और बेटा को वो उसने रेफर कर रहा है तो उसको हमेशा वो ज्यादातर उसको नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड अ कॉर्पोरेट कल्चर. इट इज हैपेंस इन गवर्नमेंट, इट हैपेंस इन प्राइवेट, बट इट डजंट हैपन इन कॉर्पोरेट. So please understand that. The business mistakes made in interview, as I have mentioned, ये again फिर से वापस खाली बोलने के लिए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है इंटरव्यू में फेल होने का वो है कि अगर आप ये चार्ट ही देखते हो तो सबसे ज्यादा है डूइंग नो रिसर्च. 26% जो है उसमें जो है मार्क खाते हैं, 26% और 39% बीइंग अनप्रिपेयर्ड. ये दोनों एक ही, मतलब बीइंग अनप्रिपेयर्ड एंड डूइंग नो रिसर्च ऑलमोस्ट इज वन एंड द सेम, बिकॉज sorry to interrupt you. Yeah. If you can please highlight some points on the resume writing. I will do that once I finish this. Okay. Can I just want to finish this part and then we go to the resume writing. Okay. So I'll go fast. Already I have said all these things. मैंने ये सारा चीज बोल चुका हूँ तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. अब मैं ये इवैल्यूएशन क्वेश्चंस पे आ चुका हूँ, इसका तो एहसान बात करेंगे. तो लेट मी गो टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाउ बिफोर. ओके, so what, जहाँ जैसा मैंने एहसान ने कहा कि जो इम्पोर्टेंट चीज है रेज्यूमे राइटिंग. अब रेज्यूमे, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि हर एक टाइम पे आप जो भी जॉब के लिए जा रहे हो, जैसे सेल्स जॉब है तो सेल्स रिलेटेड रेज्यूमेज आप देख सकते हो. आप क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है. उस हिसाब से, उस रेलेवेंस से आपने अपने रेज्यूमे को बनाना चाहिए या फ्रेम करना चाहिए या कोशिश करना चाहिए. अगर फ्रेशर्स भी है, फ्रेशर्स में भी जैसा बाज वक्त में
बच्चे भी होते हैं जो नहीं करके अपने फादर की दुकान पे जाते हैं या अपने अंकल की दुकान पे जाते हैं, या कोई जैसे उन्होंने समर हॉलीडेज में कोई काम किया होता है। तो ये सब चीजें भी जो है एक्सपीरियंस को अगर आप मेंशन करते हो इन योर रेज्यूमे एज अ फ्रेशर, इट डज नॉट, यानी वो कोई खराब बात नहीं है, उसको कोई बुरा नहीं समझेगा। तो बट शॉर्ट में अभी अक्सर रेज्यूमे राइटिंग में इधर लोग उसको बहुत लंबा 2-3 पेजेस का बना देते हैं। प्लीज आप लोग ने एक बात ध्यान देना चाहिए कि जितनी रेज्यूमे को आप कंसोलिडेट करके 1 मैक्सिमम 1 या 2 पेज के अंदर बना सकते हो, दैट वुड बी द बेस्ट। रीजन आई टेल यू इज कि मैंने देखा है कुछ लोगों की रेज्यूमेस जो उन्होंने 10 साल काम किए, 12 साल काम किए, और उन्होंने क्या किया है कि वो सारे 12 साल का जहां जहां उन्होंने काम किए हैं उस सब चीज का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। भाई मैं आपसे ये एक सिंपल सी लॉजिक पूछता हूँ, आप अगर जॉब के लिए जा रहे हो और जो करंट पोजीशन है आपका, अगर आप मैनेजर के लेवल पे जा रहे हो, आपने स्टार्ट किया था मे बी एज एन इंटर्न, आपने आपके रेज्यूमे में वो भी मेंशन किया कि मैं इंटर्न में ये सारा चीज किया, और फिर मैंने एज ए असिस्टेंट ये सारा चीज किया, और उसके बाद ये सारा चीज किया, और इस तरह चीज, और मतलब हर टाइम पे आपने जो भी चीज किया वो सारा जॉब डिस्क्रिप्शन देते रहे, तो आपके रेज्यूमे वैसे ही 6 पेजेस ये हो जाती है। इट इज स्टूपिड, नोबडी इज गोइंग टू रीड इट, क्योंकि जो जॉब के लिए आज आपको देखा जा रहा है वही चीज को रेलेवेंट देखा जाएगा कि आज आपके जो मतलब लास्ट आपने जॉब किया है उसी चीज को देखा जाएगा, उसी रेलेवेंस से देखा जाएगा। तो जो पास्ट का है उसको सिर्फ अगर आप कह देते हो कि भाई मैंने एज ए असिस्टेंट मैनेजर ये कंपनी में काम किया, ये पीरियड से ये पीरियड, वो काफी है। यू डोंट हैव टू मेंशन एवरीथिंग इन डिटेल्स, बिकॉज जब आप रेज्यूमे राइटिंग में ये चीज बहुत जरूरी होती है। जैसे कि अभी लोग जैसे अभी HSC, SSC और मतलब 11वीं 12वीं और फिर ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन सारा डिटेल लिखते हैं। अब तुमने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसको पहले लिखो, क्योंकि वो तुम्हारा मतलब लास्ट ये है जो तुमने पाया है सर्टिफिकेट, तो पोस्ट ग्रेजुएशन पहले होना चाहिए, उसके बाद जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन, और उसके बाद तुम 12वीं और 11वीं किए हो या नहीं किए हो तो ऑब्वियस है कि तुम अगर ग्रेजुएट हो, तुमने 11वीं और 12वीं किया ही होगा तभी तुम ग्रेजुएट बने हो। अब उसमें तुम 11वीं का भी और 12वीं का भी और सारा इसका लिख रहे हो, तो फिर तो मेरे को लगता है केजी से आपने पूरा लिखना चाहिए। तो प्लीज डोंट डू दैट, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो लोग अक्सर करते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपने ग्रेजुएशन किया है तो सिर्फ वो 2 चीज मेंशन करो, जरूरी नहीं कि आप 11वीं और 12वीं का भी डिटेल्स मेंशन करो। तो इसमें और एक जरूरी चीज जो रेज्यूमे राइटिंग में आप लोग ध्यान देना चाहिए कि लोग जो है पूरा नाम, पता और सारा कुछ डिटेल इस तरह से लिख देते हैं। आज का जमाना में कौन आपको चिट्ठी भेजता है? आपके घर वाले भी कभी आपको चिट्ठी नहीं भेजे होंगे, तो कंपनी कहाँ आपसे चिट्ठी भेजने वाली है? आपको रेज्यूमे के इसमें कहाँ पे उन लोग इस तरीके से कांटेक्ट करने वाले? कोई भी आपको रेज्यूमे में आपका घर का एड्रेस नहीं मांग रहा है। जब आपको सेलेक्ट किया जाएगा, जब आपको लिया जाएगा, तब आपके घर का एड्रेस और डिटेल्स लिया जाएगा। इस वक्त सिर्फ आपका नाम, तो शॉर्ट में अगर आप फर्ज करो मीरा रोड में रहते हो, मुंबई में रहते हो, तो मीरा रोड मुंबई लिखना काफी है, और आपका ईमेल और मोबाइल नंबर। इससे ज्यादा आपको रेज्यूमे में एड्रेस पूरा शांति नगर वैसा पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं। इट इज क्वाइट यानी इररिलेवेंट, इट्स नॉट नीडेड, जरूरी भी नहीं, उतना कोई नहीं पढ़ता है। तो और दूसरा एक चीज जो है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं रेज्यूमे में, वो लैंग्वेजेस और हॉबीज। ये मेंशन करना जरूरी है कि आप कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, और क्या आपकी हॉबीज है। आपकी हॉबीज से ये होता है कि आप में एक कोई चीज की इंपॉर्टेंस है, कोई चीज की मतलब अभी लोग जो है अक्सर म्यूजिक सुनने के शौकीन होते हैं, लेकिन वो लोग समझते हैं कि वो लिखना जरूरी नहीं है।
क्यों? आप अगर कोई भी चीज आपकी हॉबी है तो उसे मेंशन कीजिए रेज्यूमे में। ये एक अच्छी चीज है कि आप हॉबीज और अपनी लैंग्वेजेस मेंशन करना। और दूसरा, जैसा मैंने आपको कहा कि एजुकेशन में आपका जो लास्ट है, जैसे आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो अगर आप ग्रेजुएट हो तो खाली 12वीं और ग्रेजुएशन और 12वीं लिखना जरूरी है, यानी 12। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लिखना जरूरी है, बाकी का आपका जो डिटेल है वो लिखना जरूरी नहीं। दूसरी एक चीज जो आपको ध्यान रखना चाहिए रेज्यूमे में मेंशन करना, जैसे अगर आपको कंप्यूटर्स आता हो, आपको कोई भी एडिशनल फोटोशॉप आता है, या कोई भी ऐसी मतलब आईटी रिलेटेड या कोई भी टेक्निकल चीज आती है, तो उसे जरूर मेंशन कीजिए। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया है, कोई भी आपने जैसा मतलब कोई भी समर हॉलीडेज कैंप्स किए, कुछ भी, तो उसको मेंशन करना जरूरी है। क्योंकि आप सब फ्रेशर्स जब जाते हो तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन आपके पास एक चीज होती है कि आपने क्या स्कूल में सीखा है या कॉलेज में आपने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया है, ये चीज को आपको दिखाना है। These are things which I think you should mention very clearly. And please take guidance on your resumes. I'm ready for questions, Ehsan. Please, if there are questions, I'm ready for it. Yes, sir. There are quite a few questions. Okay. So let me stop the share screen. So there's a question from Mr. Saddaq Hassan. May I ask the interviewer to give facility for namaz, or should I ask it on the first day in office? Firstly, let me ask you something. Is the interviewer or is the company responsible for your namaz? Yani, is the company accountable for your namaz, or you yourself are accountable for your namaz? My simple question. Can you? Huh? I'm answering on behalf of the candidate. Yeah, please. We ourselves are responsible. You are yourself responsible. तो अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप अपना टाइम में से नमाज पढ़िए ना। आपको लंच टाइम मिलता है 1 घंटा या जो भी, उसमें आप अपना नमाज पढ़िए। आप कंपनी के टाइम से नहीं नमाज पढ़ सकते हो। ये मतलब कौन सा रूल है? इसको आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे को, देखिए, अगर यहाँ पे बाज वक्त लोग कंपेयर करते हैं कि भाई अगर वो उनको पूजा में जाना होता है, वो पूजा में जब जाते हैं वो सिर्फ मतलब साल में कोई एक आध ओकेजन होता है। नमाज आपको 5 टाइम जो है हर रोज पढ़ना है। तो यू कैन नॉट कंपेयर द टू। ये दो चीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको नमाज पढ़नी है, to the next question. Yes, please. Sir, I cleared aptitude test group discussion round, and in technical round I was honest and answered 6 questions out of 10. Still I couldn't clear the interview. What might be the reason? See, now this again, यहाँ पे जो है अक्सर ये लोग होता है, अगर आपने इंटरव्यू में ये सारे चीज किए थे और आपने मतलब एप्टीट्यूड भी टेस्ट किया और टेक्निकल भी क्लियर किया और आपको मतलब आपको सेलेक्ट नहीं किए गए, आपको फुल राइट है इंटरव्यू को पूछने के लिए कि मेरे क्यों, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज द मिस्टेक्स in my interview so that I can better myself. यही सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको इंटरव्यूअर से पूछना होता है, तो वो आपको गाइड कर सकता है कि भाई तुमने इस तरह से मिस्टेक किए, या तुम्हारा इस चीज में जो है शॉर्ट था, इस वजह से तुम्हारे को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। ये सब चीजें जो है तुम्हारे को इंटरव्यूअर से उसी वक्त पूछ सकते हो। जब आपको मतलब उन्होंने रिजेक्ट किया है या आपको बोला गया है कि फाइन वी विल गेट बैक टू यू, तो दैट इज एन इंडिकेशन। अगर आपने उसने आपको कहा है कि वील गेट बैक टू यू, दैट इज एन इंडिकेशन दैट यू आर नॉट बीइंग सेलेक्टेड। सो यू कैन आस्क हिम, सर इफ यू कैन काइंडली एडवाइज मी एज टू व्हाट वाज द शॉर्टकमिंग्स इन माय इंटरव्यू सो दैट आई कैन बेटर माई सेल्फ। तो इस तरीके से आपको जो है वो इंटरव्यूअर जो एचआर है वो गाइड कर सकता है और रिप्लाई दे सकता है। इस वक्त मैं इस चीज का जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ना ही मैं उस इंटरव्यू में था और ना ही कोई भी ऐसा एडहॉक जवाब दे सकता है, क्योंकि इंटरव्यूअर एक ही चीज नहीं देखता है। जैसे आपने अभी कहा कि मेरे आंसर सही थे और मेरा टेक्निकल ये सही था, आपके नजरिए से सही था,
लेकिन इंटरव्यूअर ने क्या चीज उसमें गलत पाया या क्या चीज उसने और गलत पाया आपके टोटल इंटरव्यू में, वो मुझे नहीं पता। मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि इंटरव्यू में एक ही चीज नहीं होती है, सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट और टेक्निकल राउंड वो नहीं देखा जाता है, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है। नेक्स्ट। Thank you. Do they allow to give interview in native language? This is from Mr. Saddaq Hassan. नेटिव लैंग्वेज मतलब क्या होता है आपका? अगर आप फर्ज करो, इफ यू आर if you are giving an interview in Tamil Nadu or in regional places, and the interviewer himself starts in a native language, then it's okay, fine, you can give him in your native language. But if he is talking to you in English and then you give a reply in native language, that is not acceptable. But if you are giving reply in English and then if the interviewer switches to Hindi or any native language, then you are comfortable to speak in the language. Like जैसे अभी मैं आपके साथ इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ और हिंदी में भी बोल रहा हूँ, तो अगर अभी आप मेरे से जब सवाल पूछते हो तो अगर आप मुझसे हिंदी में सवाल करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं आपसे हिंदी में भी कन्वर्स कर रहा हूं और इंग्लिश में भी। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलूं तो फिर अगर आप हिंदी में से सवाल पूछते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। Thank you. There's Mr. Faizan Khan who is asking, tell me about yourself में minimum कितना minute बोलना है? So how many minutes he has to speak when the interviewer asks the question, tell me about yourself? फैजान, जैसा मैंने आपको कहा कि आप पहले तो गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, इसके आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे। ऐसे इस चीज के टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बहुत सारे रेफरेंसेस है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग इंटरव्यूज किए गए हैं, सैंपल इंटरव्यूज, और उसके जवाब दिए गए। तो उसमें आपको रेलेवेंट, देखिए अभी मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको रेलेवेंट होना चाहिए, आपके साथ रेलेवेंस होना चाहिए। अगर आप कोई चीज को सिर्फ सामने वाले ने बोला है, अभी मैं आपको एक जवाब दे दूं और वही चीज आप रट के जाओ, तो वो उसमें वो बात नहीं बनती है। तो इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, बट ऑलवेज ट्राई टू, हमेशा अपने इंटरव्यू के जवाब को मतलब ब्रीफ रखिए, लंबी स्टोरी मत बनाइए कि आदमी सामने वाला बोर हो जाए, और इतना शॉर्ट भी मत रखिए कि सामने वाला समझे नहीं। जस्ट ब्रीफ रखिए। ब्रीफ का मतलब समझते हो? मतलब ना ज्यादा लंबा ना एकदम मुख्तसर, बस खाली उसके बारे में, जो आपके बारे में जो जरूरी चीज है वो बताइए। थैंक यू। मिनिमम मतलब ये सोच लो कि 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए आपका। अनलेस इंटरव्यू जब अगर आपसे क्वेश्चन करते तो आपको उसको बढ़ा सकते हो, बट अपनी तरफ से आपके 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 मिनट भी बहुत हो गया। Thank you so much. There's another question from Mr. Masiullah Majid. How to answer questions which we don't have knowledge about during an interview? What kind of knowledge you are talking about? You see, when you are going for an interview, that is the reason why I said you have to be prepared. प्रिपेयर होना। जैसे अभी सेल्स जॉब के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे को सेल्स जॉब में जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एज एन इंटर्न सेल्स जॉब के डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये सब चीज अगर तुम जानोगे, पहले से ही पढ़ोगे उसके बारे में कि सेल्स में ऐसा होता है, ऐसा करना पड़ता है, तो मतलब जो जॉब डिस्क्रिप्शन रिलेटेड है उसके बारे में मालूमात कर लो या करने की कोशिश करो, तो आपके पास खुद बे खुद आंसर आएंगे। और अगर एड हॉक कोई आपको कुछ मतलब अलग ही दुनिया का कोई सवाल अजूबा तो नहीं पूछने वाला, आई डोंट थिंक सो। हाँ, कभी कभार इंटरव्यूअर्स ऐसे मजाक के तौर पे या ऐसे जनरल नॉलेज के तौर पे कोई सवाल पूछ लेते, अगर आपको उसका जवाब नहीं आता है तो बी ऑनेस्ट, से सर आई डू नॉट हैव द आंसर फॉर दिस, बट आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू इन माय नेक्स्ट राउंड। इस तरीके से आप वेरी ऑनेस्टली बोल सकते हो अगर आपके पास कोई ऐसा उसने जवाब पूछा है जो आपके पास कोई आंसर नहीं हो, लेकिन फेंको मत। आगे। Thank you very much. There's Miss Tayyaba Sheikh. Assalamu alaikum. I completed my computer engineering in 2019.
How do I build confidence for interview? Please guide me since I'm a fresher. Also, is it safe for a girl to work in site as civil engineer? Please guide. सिविल इंजीनियर, ये बिल्डिंग जो बनते, दैट इज व्हाट सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट, राइट? Yes. Frankly, I have no much idea on this per se, whether if it is safe or not safe, because there basically you are working with labor class of people, labor type of people. Whether if you are able to cope up and manage those people is one thing. So I am not too sure whether there about the safety part. So I will not comment on something which I am not too sure. But job is job. Anybody can do a job if they are strong enough to follow. I know of girls who are IPS officers. I know of girls who are police officers. So it's not necessary that you cannot be a civil engineer if you are a girl. Safety, that I don't know. यानी पुलिस ऑफिसर तो वो तो गुंडे और मवालियों के साथ डील करते हैं. So I am not talking on the line of safety or not safety. Safety is in your how you take the measures to be safe. But that I will not point out. Regarding confidence building, ये सबके लिए है common. It's not just for Tayyaba. It's basically confidence. कॉन्फिडेंस जो होता है, इसको आप ये मत सोचिए कि कोई गोली है कि आपने गोली खा ली और आपके कॉन्फिडेंस आ गया. ऐसा कुछ नहीं है. इसमें दो एक चीजें होती है. एक तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके रेज्यूमे में कोई भी झूठ मत लिखो. डोंट डू एनी फेकोलॉजी इन योर इंटरव्यू इन योर रेज्यूमीज, सो दैट यू डोंट you're not puzzled जब उसने आपसे कुछ सवाल किया तो आपके पास जवाब नहीं है. कोई झूठ जब डालते हो ना रेज्यूमे में, तो वो अक्सर जो है इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होता है. तो ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ लाइज इन योर रेज्यूमे. Keep everything whatever you know, like your education, everything very clear. And uh, whenever you're going for an interview, go well prepared. Try to go in time. Do research, do all these things. Go on time. अक्सर अभी क्या होता है, when you're late तो वैसे ही टेंशन बन जाता है. तो इसीलिए पहले टाइम पे जाना हम क्यों कहते हैं कि आप जाओ वहाँ पे एसी में रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा वॉश अप हो जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, ताकि जब इंटरव्यू के सामने बैठते हो तो आप रिलैक्स्ड हो, मेंटली एंड फिजिकली. बेसिकली नॉट मेंटली तो फिजिकली तो कम से कम रिलैक्स्ड हो. And whenever you are going for an interview, try to think that this is just an interview. ये life and death नहीं है. Okay, so there is no such thing, no hard and fast rule for confidence. Just go with a relaxed attitude. It all depends on your attitude. The more stressed you feel, the more you will always feel that मतलब वो दिल में घबराहट हमेशा रहेगी. ये तो हमारे एग्जाम के टाइम पे भी होता है. जैसे अभी आप सब स्टूडेंट्स हो, आपको सबको एग्जाम के टाइम पे जब भी आपने कितना भी साल भर पढ़ा हो, लेकिन जब एग्जाम का पेपर सामने आता है तो वो थोड़ा नर्वसनेस होता है. लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप लिखते नहीं हो. आप थोड़ा कंपोजर लेते हो और फिर लिखना शुरू करते हो. इसी तरीके से इंटरव्यू में भी सेम एटीट्यूड होता है कि आपको चाहे कुछ आए या ना आए, आप मतलब कॉन्फिडेंस से जाइए. आपको मालूम है कि आपको जॉब जो है ट्राई कर रहे हो, तो आप अपनी कॉन्फिडेंस लीजिए, अपना रिलैक्स्ड वे करिए और जाइए आगे. आई एम श्योर इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट योर जॉब. Thank you so much, sir, for answering most of the questions. I will now take our candidates to our job portal and give them more information on how to apply jobs on the job portal, if you permit. Yeah, please do that. I will also advise most of you all to please register yourself on the job portal. And in case you have any requirement, any need for looking for your resumes and all these things, please approach AMP. We have got counselors, we have got people who can help you and who can guide you. You all need mentoring, you all need guidance. So do approach us. Okay, thank you, Ehsan. Yes, Please I continue. will. Thank you so much.
So as I had shown everyone, the presentation had a small glimpse of the job portal which we had launched. तो जो हमने जो जॉब पोर्टल लॉन्च किया है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, इट इज empowerjobs.com, AMPOWERJOBS.com. I have shared this link in the chat box. So the moment you visit this job portal, you'll find quite many jobs which are listed and posted on this portal. आपको काफी सारे jobs वहां नजर आएंगे. The first step that you do is you register yourself. सबसे पहले आपको register करना है. तो आप जब register करोगे, the moment you register, you have to enter your email ID and you have to create a password. और जो कैप्चा नंबर्स है वो आपको एंटर करके रजिस्टर पे क्लिक करना है. इमीडिएटली आपको एक ईमेल आएगा थ्रू एम्पावर जॉब्स. समटाइम्स द ईमेल आल्सो लैंड्स इन योर स्पैम फोल्डर. तो आपका जो जंक बॉक्स है, स्पैम फोल्डर है, उसमें भी आप ईमेल चेक कर लीजिए. उस पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगी. वो जो वेरिफिकेशन लिंक होता है उस पे आपको क्लिक करना है. यू हैव टू क्लिक ऑन द वेरिफिकेशन लिंक. Then once again you have to come on the portal and you have to apply to jobs. तो उसमें जो जो सारे information है, you have to enter all the information which the portal is asking you, and you have to submit your resume and start applying to jobs. Apart from this, there is also a group which is formed on Telegram. तो आप सबको पता होगा Telegram करके एक ऐप है. You have to download that app, और उसमें जो है आप डाउनलोड करने के बाद आपको लिंक में सर्च में आपको एम्पावर जॉब्स टाइप करना है. AMPOWERJOBS. तो ये जैसे ही आप टाइप करोगे, यू विल गेट द ग्रुप एंड यू विल हैव टू ज्वाइन दैट ग्रुप. साथ ही में मैंने आपको जो ग्रुप की जो लिंक है, आई एम राइटिंग इन द चैट बॉक्स so that be easier for you to join. So in this group, Mr. Hassan Latifi, our mentor for the employment assistance cell, he quite often posts the jobs which are verified by him. And empower jobs पे भी जो भी jobs हम लोग post करते हैं हमारे job portal पे, we also publish those jobs on the Telegram app. इसके अलावा if there is anything which you want to ask related to your career, your resume, जो भी doubt आप सबको है, आप हमें request भेज सकते हैं on the email which I am writing right now in the chat box. It is employment cell, CELL EMPLOYMENT, employment cell, CELL at ampindia.org. So this is the email address wherein you can write your feedbacks as well. The feedback, how did you find this session, उसमें आपको क्या क्या beneficial लगा आपके career से related. At the end, Mr. Hassan Latifi sir, I would like to thank you. Thanks a lot for giving your valuable time for our candidates. It was a very wonderful session and we got to learn many techniques in terms of appearing for the interview, resume writing skills, our attitude. It was helpful for the freshers as well as experienced, both the genres. Thank you very much. Ehsan, there is one last thing I want to say. Please, please. Especially when these people are applying for jobs, in their resume itself, it's very essential. Like, I'll just put it in the chat. They should always put their resume in this format. Like, for instance, their name, Hassan, dot, you can put. Now, if it is financial consultant, I'm just giving you an example, okay? Consultant, okay? Now, if you are put it this way, what happens is, अगर आपने अपने resume में इस तरीके से हसन फाइनेंशियल कंसल्टेंट या जो भी है आपका नाम
या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, कोई भी एक नेम आपने चूज करके आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो डालते हो, तो जब सॉर्टिंग होता है रेज्यूमी का, तो इतना ही इजी हो जाता है लोगों को जानने के लिए कि ये भाई ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, ये सेल्स रिलेटेड है, ये मार्केटिंग रिलेटेड है, ये आईटी रिलेटेड है। अब आईटी में भी जो है अलग अलग होते हैं, जैसे अभी किसी को आईटी चाहिए तो शेयर पॉइंट है या जो भी दूसरे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो किस्म की भी जॉब आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस चीज को आप अगर आपके रेज्यूमे में मेंशन करते हो, so it becomes easier for identifying and understanding what the job, what the candidate is all about. This is one thing very important in the resume. Hello. Thank you very much, sir. Hmm. I would now like to request the participants to please log in to our job portal empowerjobs.com and also promote this within your network. आपके जितने भी friends हैं, जितने भी colleagues हैं, जितने भी relatives हैं, उन सबको ये पोर्टल का आप लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके. एंड ऑल्सो एज आई मेंशन, हमारे पास जो टेलीग्राम पे हमारा एम्पावर जॉब्स का जो ग्रुप है उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. And I pray to Almighty that each and every person who has joined here, they get suitable jobs and they clear the interview rounds and they succeed in their life. Thank you very much. Good evening. Thank you very much for joining.